So in today's English class, we are going to do the poem Don't Be Afraid of the Dark, right? It is at page number 74 in your books. I hope everybody has got it. Please quickly switch on your camera and show me your books. Hurry up fast. Show me your books, Bete. Let me see whether you have got the book or not. Excuse me, ma'am. Please tell page number again. Page number is 74, bache. Maybe it is slightly different in your books. Bete, please keep yourself muted. Still, I can see many of the students have not switched on the cameras. Why? Why so, Bete? Yes. Okay, bache. Let us start. So the poem is "Don't Be Afraid of the Dark." No, many of you must be afraid of the dark, है ना? रात होती है, अंधेरा हो जाता है, मम्मा कहते हैं बाहर से कुछ लेके आना, and you feel scared. You don't want to go out. Why? Because you are afraid of the dark. आपको अंधेरे से डर लगता है. ऐसा होता है ना बहुत सारे बच्चों के साथ. Moreover, कई बार क्या होता है when we switch off the lights, रात को जब मम्मा lights off कर देते हैं, हम सोने लगते हैं. Even then, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तब भी आपको डर लगने लग जाता है. आप अंधेरे में भी थोड़ी सी कहीं पे भी देखते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं कोई शेडो नजर आ रही है क्या, वो कुछ है तो नहीं, वहां पे कोई इंसेक्ट तो नहीं है, कोई लिजर्ड तो नहीं है, या कुछ और तो नहीं है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन अ प्लेस व्हिच इज डार्क. तो आप कहीं पे अंधेरे में बैठे हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है, एंड यू स्टार्ट इमेजिनिंग, अपने आप इमेजिन करने लग जाते हैं. सो सेम इज द केस विद द चाइल्ड. Titiksha, I think I'm quite loud, bit. Okay. So same is the case with the child that the poet is talking about in the poem. Poet kaun hota hai? What will you say? Who is a poet? Excuse me, ma'am. Yes. What's the page number? It is 74, and please rename yourselves because most of the students have not renamed themselves, and I can't. I don't think this is your name. Harvi to koi name nahi hota na beta. Okay, so please rename yourselves. Right. So who is a poet? Poet is a person who writes the poems. जो poems लिखता है उस person को poet बोलते हैं, है ना? जो person stories लिखता है, books लिखता है, बोलो क्लास में, जो person books लिखता है, stories लिखता है, that person is called the author. वो person author होता है, and the person who writes poems is called a poet. Okay, so now because this is a poem, अब हम poem पढ़ रहे हैं, so of course यहाँ पे हम poet बोलेंगे, right? So जो poet है इसमें, जो जिसने poem लिखी है, वो क्या कह रहा है? Whom is he talking to? वो किससे बात कर रहा है? किसके लिए उसने poem लिखी है? He has written this poem for a small child. एक छोटे बच्चे के लिए उसने poem लिखी है. Okay, now what does the poet say? Don't be afraid of the dark, little one. Don't be afraid of the dark. तो आपको पता है कि अंधेरे से डरना नहीं है तुम्हें. Little one. Who is this little one? Can anybody tell me? Raise your hands quickly. Can anybody tell me who is this little one? Okay, Sakshi, please first of all switch on your camera. Then you have the right to answer me, bete. Sakshi, yes, bache. The child in the poem is little one. Very good. Yes, ये little one जो उसने word use किया है, वो किसके लिए use किया है? For the child in the poem. जो poem में जिस child के बारे में वो बात कर रहा है, उसे उसने little one कहा है. Why? Because he's a child. That's why he's calling him a little one. बेटे, even if you don't know the page number, there is an index in front of every book. आपको पता है कि हर book के आगे एक index बना होता है? Have you ever noticed? आप 4th class में हो गए, अभी आप छोटे नहीं हैं. हर बुक के आगे एक इंडेक्स बना होता है जहाँ पे हर चैप्टर का नाम लिखा होता है एंड उसका पेज नंबर लिखा होता है. So instead of disturbing the teacher and the whole class again and again, it's better you learn to see the index. And otherwise वो इंडेक्स नहीं भी आता बेटा, आप थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर सकते हैं. पोएम का नाम पता चल गया आपको, you can search for the poem. Okay, so he says, don't be afraid of the dark, little one. छोटे बच्चे, तुम अंधेरे से मत डरो. The earth must rest when the day is done. Now the word here is D-O-N-E, done. Please everybody be attentive. The poet says the earth must rest. यानी कि अर्थ को रेस्ट करने की जरूरत है. जैसे हम पूरा दिन वर्क करते हैं and then we get tired. You know, आप स्कूल से जाते हो कहते हो मम्मा रेस्ट करने दो. Why? Because you feel tired. आपने बहुत काम किया, सारा दिन आप स्कूल में घूमे हैं, बातें की हैं फ्रेंड्स के साथ, थक जाते हैं ना बातें कर करके, काम तो आप करते नहीं है, राइट? सो सिमिलरली जो अर्थ है उसे भी रेस्ट की जरूरत है,
when the day is done. Now what is done here? Done को underline करेंगे सारे. Please everybody underline the word done here. Yes, D-O-N-E, done. Just wait a minute. Okay. Is the screen visible? Harkun, sorry, Sarkun, is it visible? Mayank, is it visible, bete? Right. So can you see what I have written here? It's quite small. I'll just increase the size. Right. So the word here is done. When the day is done. Now what does done means here? Done means when the day is over. जब दिन खत्म हो जाता है. So please write down these words side by side with the help of a pencil in your hands. Right? So वो क्या कह रहा है? When the day is done. जब दिन पूरा खत्म हो जाता है तो अर्थ को भी किसकी जरूरत पड़ती है? It needs to take some rest. Right? Okay. Now let us move further. The sun must be harsh, but moonlight never. Now, what is the meaning of? Who's the poet here? Very good. Mayank is telling us. I forgot to tell you. The poet here is Ruskin Bond. So Ruskin Bond is a very famous. Otherwise, he's a very famous writer. He's an author. He's a poet. He writes poems and stories for children. So if you have any interest in reading stories, you can go for Ruskin Bond ki aap books la sakte hain. So he's a very good author who writes very nice stories for the students, for the children, small children. Okay, all right, bete. Very good. So the poet's name here is Ruskin Bond. Okay, now he says the sun must be harsh, but moonlight never. Now वो कह रहे कि जो sun होता है वो कभी-कभी harsh हो सकता है. Who's gonna tell me the meaning of the word harsh? Yes, with it. Okay, I want somebody new. Come on. Why are the same students all the time? Harveer Singh Dhinsa ji. Yes, please unmute yourself. What is harsh? Garam. Harsh is garam. I'm not saying hot. Anybody else who wants to try? Harveer, better no need to copy others' responses. Again, I have only 2 hands raised. Okay, Vanshika is the new one. Yes, Vanshika. Harsh. Kator. Kathor, okay, and Vanshika has told the right answer in Hindi. Harsh is something that is not very soft. ठीक है, gentle नहीं होता, which is not gentle, which is not soft. ठीक है, harsh means जो चीज आपको पसंद नहीं आती है, जो आपको थोड़ी सी rude feel होएगी, जो आपको अच्छी नहीं लगेगी. Like if I tell you an example, अगर अभी summer season is going on, right? So if you go outside in the sun, how are you going to feel? Sun आपको कैसा लगेगा? Are you going to love the sun? Is it going to be soft for you? No, it is going to be harsh for you all. वो आपके लिए harsh होगा. Means आपको you won't like it. Being in the sun, nobody likes to be in the sun during the summer, right? So वो कह रहा है, poet is saying the sun must be harsh. Sun जो होता है वो कभी-कभी harsh होता है. But when you go in the winters तब तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन summers में हमेशा sun हमारे लिए harsh होता है, right? The sun must be harsh, but moonlight never. लेकिन जो मून की लाइट होती है वो कभी भी हार्श नहीं होती है. यू ऑलवेज हैव दैट सॉफ्ट सूदिंग फीलिंग व्हेन यू गो आउट इन द मूनलाइट. अगर आप कभी बाहर छत पे जाते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम, तो आपको आप जब मून की तरफ देखते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना. आपको लगता है मून कितना सुंदर है, एंड यू फील यू हैव दिस वेरी प्लेजेंट फीलिंग मून को देख के. आपको कभी मून को देख के ऐसा तो नहीं लगता हो मुझे चुभ रही है मून की लाइट? ऐसा तो नहीं होता, मुझे अच्छी नहीं लग रही है मून की लाइट. डू यू एवर फील दैट? नो. सो द पोएट सेज कि सन की जो लाइट है वो कभी कभी हार्श हो जाती है, चुभने वाली होती है, हमें अच्छी नहीं लगती है. बट मूनलाइट जो होती है, जो मून की लाइट है, वो कभी भी इस तरह की नहीं होती. दैट इज ऑलवेज सॉफ्ट. वी ऑलवेज लव टू वॉच दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉरएवर एंड एवर. और वो जो स्टार्स हैं, द पोएट सेज, वो जो स्टार्स शाइन कर रहे हैं स्काई में, दे विल ऑलवेज शाइन. they are shining forever and ever means हमेशा हमेशा के. तो कह रहे हो जो स्टार्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जो स्काई में शाइन करते रहेंगे.
Have you ever seen कि स्टार सोचे कि आज, have you ever heard कि स्टार सोचे कि चलो आज छुट्टी करते हैं, आज शाइन नहीं करते हैं? Does that ever happen? No. Even when it is a cloudy day, even when it is a foggy day, तो वो एक्चुअली होते तो हैं हमेशा. They are always on their duty. Stars हमेशा वहां होते हैं. Maybe हमें नजर नहीं आए, वो क्लाउड्स के पीछे चले जाएं, but they are always there, right? So वो अब उससे मून नाइट में हमें क्या क्या नजर आता है वो हमें सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, ताकि हम नाइट से और रात से डरे नहीं, डार्कनेस से डरे नहीं. सो एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉरएवर एंड एवर. Be friends with the night. Now, what do you mean by the word be friends? Be friends. Yes. Be friends का मतलब क्या होगा? Come on, you people don't even try, bete. At least try. Okay, Anmol Deep Kaur, unmute yourself. Yes, बच्चे. दोस्त बने रहना. दोस्त बने रहना नहीं, बने रहना. Okay, be friends means दोस्त बन जाना. Okay, very good. Okay, Mayank, बेटे concentrate on what I'm teaching. मैं साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. Right, Mayank, can you give a smile? Why you're so serious? Right. Okay. So be friends with night. So वो कहता है, पोएट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि be friends with night. आप नाइट, जो नाइट है, रात का टाइम है, उसके साथ आप क्या बन जाओ? उसके फ्रेंड बन जाओ. जैसे सपोज यू नो, यू पीपल फाइट विद योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, और फिर आपको किसी ने समझाया, दोनों फ्रेंड्स को समझाया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो क्या बोलते हैं आपको? चलो चलो अब गुस्सा मत करो एंड बी फ्रेंड्स अगेन. ऐसे बोलते हैं ना कि फिर से फ्रेंड्स बन जाओ. बी फ्रेंड्स अगेन का मतलब होता है फिर से फ्रेंड्स बन जाओ. लेकिन यहाँ पे वो अगेन वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है बी फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स बन जाओ. राइट. सो पोएट उसको कह रहा है कि बी फ्रेंड्स विद नाइट. नाइट के साथ फ्रेंड बन जाओ. जो आप किसी के फ्रेंड होते हैं ना, तो आप उससे डरते नहीं है, आप उसका कंफर्टेबल फील करते हैं. ऐसे ही होता है ना. आप जो अननोन लोग होते हैं, जो आपके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनसे आप थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. इसीलिए वो कह रहे हैं कि फ्रेंड्स बन जाओ. जब आप उनके फ्रेंड्स बन जाओगे तो आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करोगे, है ना. तो नाइट को फिर आपको नाइट में डर नहीं लगेगा. नाउ देयर इज नथिंग टू फेयर. नथिंग मींस कुछ भी नहीं. क्या कुछ भी नहीं? नथिंग टू फेयर. डरने वाली कोई बात नहीं है. वो कह रहे हैं कि नाइट से डरने वाली कोई बात नहीं है. तुम नाइट के क्या बन जाओ? फ्रेंड बन जाओ. नाइट के साथ फ्रेंडशिप कर लो. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. नाउ व्हाट आर थॉट्स? थॉट्स होते हैं आइडियाज जो हमारे माइंड में चलते हैं ना, जो हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट्स हैं, है ना. दोज आर कॉल्ड थॉट्स. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रैवल? ट्रैवल करना क्या होता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप बोलते हैं ना आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, है ना. सो दैट इज कॉल्ड ट्रैवल. ओके. सो अब वो क्या कह रहा है? जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. जब रात को हम लेटते हैं ना, कई बार तो मैम ने अभी आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब हम लाइट्स ऑफ हो जाती है, हम लेटते हैं, तो हमें डर लगने लगता है, हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि अगर यहाँ भूत आ जाए तो, अगर यहाँ पे लिजर्ड आ जाए तो रूम में, मेरे साथ क्या होगा. तो आप लोग डरने लग जाते हैं, है ना. बट पोएट कहते हैं कि आप ये जो आपके माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं? हॉरर थॉट्स आ रहे हैं, डरावने थॉट्स आ रहे हैं, स्केरी थॉट्स आ रहे हैं. सो पोएट कहता है कि इन थॉट्स को नहीं आपने अपने माइंड में आने देना, बल्कि अपने थॉट्स को ट्रैवल करवाना है. ट्रैवल कराना मतलब दूर लेके जाना है. कहाँ लेके जाना है? अपने फ्रेंड्स के पास, आपके रिलेटिव्स के पास. उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे प्यार करते हैं. आपके उन रिलेटिव्स के बारे में सोचो. अपने दादू दादी के बारे में सोचो कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं. अपने नानू नानी के बारे में सोचो. अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो. तो अपने जो थॉट्स हैं उनको कहाँ ट्रैवल कराना है, कहाँ लेके जाना है? अपने फ्रेंड्स के पास, चाहे वो आपके पास रहते हैं, चाहे वो आपसे दूर रहते हैं. राइट. नाउ by day it does seem that our troubles won't cease. By day means जब तक दिन चलता रहता है, जब तक हम काम करते रहते हैं. दिन में हम काम करते रहते हैं ना, है ना, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. एक काम करते हैं, फिनिश करते हैं, फिर हमें एक और काम याद आ जाता है. सो वी कीप ऑन डूइंग द वर्क. सो द पोएट सेज बाय डे इट डज सीम मींस ऐसा लगना. SEEM सीम मींस ऐसा लगना, ऐसा फील होना. सो जब दिन चल रहा होता है ना, दिन में हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें ये फील होता है कि ओहो, our troubles won't cease. Now what is this word troubles? Yes, I'm going to write it here. You can see on the board. Just a minute. Right. Okay. TROUBLES. Troubles. Troubles means problems. It means problems.
तो जब तक दिन चलता रहता है ना, दिन का टाइम चलता रहता है, हमें लगता है कि हमने हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ओहो अब ये काम करना पड़ेगा, ओहो अब ये काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो हमारी ट्रबल्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कब तक चलती रहती है? जब तक दिन चलता रहेगा, जब तक हम काम करते रहेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम्स भी चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड भी वर्क कर रहा है, हमारी बॉडी भी वर्क कर रही है। सांजदीप, कंट्रोल योर हैंड्स। ओके, नाउ आई थिंक आई हैव स्किप्ड वन वर्ड हियर। हार्श का भी मीनिंग लिखेंगे बेटा। harsh, write down the meaning of harsh means not soft or not gentle. जो soft नहीं हो, जो gentle नहीं हो, that is harsh. Right बेटे? Okay. Okay. Now अब हम जो sentence line पढ़ रहे थे वो थी by day it does seem that our troubles won't cease. cease. Please सारे बोल के देखेंगे इस word को. This word is called cease means किसी चीज का रुक जाना, stop हो जाना, finish हो जाना. So the meaning for this can be stop or finish. Right? Note down the meaning, then I'll explain the whole sentence. Somebody is unmuted, please mute yourself. Ashwit, I think it's you, bache. Okay, so I hope everybody has written the meanings. I'll stop sharing now. Okay, now the sentence says, दोबारा से मैं इसे पूरे को read करती हूँ एक साथ. By day it does seem that our troubles won't cease. जब तक दिन चलता रहता है, हमें लगता है हमारा काम खत्म ही नहीं हो रही, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है. Cease means वो खत्म ही नहीं होंगी, कभी भी नहीं खत्म होंगी. हमें ऐसा लगता है कि ओहो, जब तक हम काम करने लगता है कभी हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी. कई बार हमें ऐसे फील होता है ना. But at night, लेकिन जैसे ही रात होती है तो क्या हो जाता है? Late at night means late hours में, 12 o'clock के बाद, 1 o'clock के बाद, 2 o'clock, रात के 1 बजे 2 बजे, तब क्या होता है? The world is at peace. पूरी दुनिया. What is peace? What is peace बेटे? Again the same hands. I want somebody. सारांश कौड़ा. हाँ जी बेटे. मैम सुनसान पड़ जाना. Okay, not exactly सुनसान पड़ जाना. Peace में शांति, right? So जब रात हो जाती है और बहुत रात हो जाती है, तो अगर आप कभी रात को ट्रेवल किया, आपको कभी कहीं गए मम्मा के साथ लेट नाइट, कई बार हम रात को जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि बाहर जब निकला ऐसा लगता है कि कोई रहता ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल शांति होती है हर तरफ. ठीक है. दिन में जब हम काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे काम कभी खत्म नहीं होंगे. लेकिन रात को सब रेस्ट करते हैं, अर्थ भी रेस्ट करती है, लोग भी रेस्ट करते हैं, एवरीबडी टेक्स रेस्ट. ओके, okay, fine. So I hope the poem is clear. Bete, I'll give you 2 minutes. If anybody has any problem, you can discuss that. You can ask that. After that, we'll move to the back exercises. We'll discuss. हाँ जी, बहुत अच्छी बात है. आपको हॉरर मूवी, हॉरर शोज देखने की या हॉरर गेम्स देखने की जरूरत नहीं. You yourself are enough. हाँ जी. Anybody who has any problem, बेटे. हाँ जी, सरगुन, please unmute yourself if you have a doubt. मैम जो यहाँ पे. Now come to page number 75. We're going to discuss the back exercises. You people will not unmute yourself. Just keep on writing your answers in the chat box. हाँ जी, Pulkit, very good. Nun देखिए, monk देखिए, जो मर्जी देखिए बेटे. Very good. Okay. Now question number 5. Are these sentences true or false? The poet tells his child to be afraid when it is dark. Does he tell them to be? Does he tell the child to be afraid? डरने के लिए कह रहे हैं. बेटे सारांश कौन है? Stop this. Stop discussing the movies. We are discussing the back exercises. Yes, false. Of course, वो कह रहा है कि आपने afraid नहीं होना, डरना नहीं है. वो डरने के लिए नहीं कह रहा, वो नहीं डरने के लिए कह रहा है. So this is false. Yes, I can't see students writing answers in the chat box even. बेटा थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट दीजिए and please write down the answers in the chat box. Next is, the poet says that the stars will always shine at night. Poet says that the stars will always shine at night. Very good. Gaurika is saying it's true. Gaurika, unmute yourself for a minute, please. Right. Yes, Gaurika, tell me, कौन सी line से आपको पता चलता है that the poet is saying that the stars will always shine at night? Can you read that line from the poem? कौन सी line पढ़ के आपको पता चला ये true है?
कोई लाइन इसमें क्लियर लाइन है जिससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस ट्रू है? एनीबडी एल्स? एक कम unmute yourself bete. Which sentence tells us that this is true? And those stars will be shining forever and ever. Very good Ekam, very good. इस sentence से हमें पता चलता है that this statement is true. Okay, now come to the C part. The poet tells the child to think of friends after it is dark. Does he tell? Okay, yes, the poet tells कि अब जब रात हो जाती है तो आपको किसके बारे में सोचना है? आपको फ्रेंड्स के बारे में सोचना है. So this is true. Very good. Now come to the next exercise. The next exercise is word building. WRD, word building. Now that means what? If you have seen the exercise, it's quite easy. इसमें कुछ भी नहीं है. Sometimes what happens, we have different two words, and when we bring those words together, they form a new word. कई बार तो अलग-अलग words होते हैं, लेकिन जब हम उनको एक साथ join करते हैं, they form a new word. Right? So here, as you can see, these are very simple. You just have to combine them both. So the first word, as you can see, is moon plus light. That becomes moonlight. Right? Good plus night becomes good night. Water plus fall becomes waterfall. Right? So this way you have to do. We are not going to discuss all the parts. Let us move to the next question on the same page. Find a word in the poem which is opposite to. Now you have to find out the words that are opposite to. और आपने वो words जो हैं वो poem में से बेटा ढूंढने हैं. ठीक है? अपनी तरफ से opposite नहीं डालने हैं. आपको poem में से opposite ढूंढने हैं. So let us see the first one. The first one is war. War का मतलब क्या होता है? लड़ाई. So what is the opposite of this? Very good. Peace. Very nice. Light. I'm waiting for your responses in the chat box. Come on, don't. Yes, dark. अभी peace पे बैठे हुए आप लोग. Right. So light का opposite है dark. Then we talk about enemies. Enemies का opposite होता है क्या होता है? Yes, it is friends. Next, night, day. Gentle. Okay, quickly tell me what is the opposite of the word gentle? Titiksha. Titiksha. Titiksha, can you hear me, bete? Can you hear me? Very bad. Very bad. Okay. So I know you can hear me, but you are pretending that you can't hear me. Right. So gentle will be harsh and start. Start का done नहीं होगा बेटा. Start का cease. मैंने आपको बोला ना अभी मैंने आपको meaning लिखवाया. Cease means to stop or to finish. So start का opposite would be cease. Very good. Now let us quickly move to the next page. Everybody look at the next page. Yes, we did. Now, if you can see here, I'm writing a word. It's did not. ठीक है मैंने word लिखा है. Please, everybody, this is important. Pay attention. Did not word लिखा है. So this is the full form. दो words हैं, did and not. So you will say कि इसकी full form है. Suppose आपने अगर चाहते हैं कि इसको contraction लिखे, now what is the word contraction? बेटे either you stop annotation or leave the class. ठीक है? Leave the class. Okay? Pulkit Bansal, बेटे चली जाइए क्लास छोड़ के. I don't need such student in my class. जिन बच्चों के hands पे कंट्रोल नहीं है मेरी क्लास में नहीं उन्होंने रहना. Very good. Leave the class. Okay. Now बेटे okay, just give me a minute. I'll start again. Okay बेटे, so did not a complete word है, ठीक है? It's a full form of a word. But अगर suppose sometimes I want कि मेरे को short लिखना है, इसमें short form लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? अभी किसी ने लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. बहुत ध्यान से सारे बोर्ड पे देखेंगे. Okay? So I'll write down first word को मैं पूरा लिखूंगी did. Second जो word है not, उसके n को मैं अब gap नहीं दूंगी. Listen carefully. मैं उसको उसके साथ join कर दूंगी. Did n आया. ये जब हम कॉन्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब छोटा करना. ओके सो अब इन ऐसे वर्ड्स जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ओ को वहां से हटा देते हैं
और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, एक कॉमा लगा देते हैं, दैट कॉमा को क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। ये कॉमा ऊपर की साइड लगता है, कॉमर्स जो लगाते हैं हम वो नीचे लगाते हैं, बट ये जो अपोस्ट्रोफी होती है इसका शेप कॉमा जैसी है और इसको हम नीचे ऊपर लगाते हैं। सो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, डिडंट। इसको कैसे बोलेंगे, डिडंट, राइट। सो डिड नॉट बिकम्स डिडंट। अगर आपको एग्जाम में आता है डिड नॉट दे दिया मैम ने और मैम ने आपको कहा कि इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है या इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है, लेट मी राइट डाउन द वर्ड फॉर यू। द वर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, ठीक है। सो ये हमने इस वर्ड को छोटा कर दिया, डिड नॉट की जगह इसको क्या बोला हमने, डिडंट बोला, राइट। सो डिडंट में क्या करना है, हमने शॉर्ट फॉर्म करने के लिए ओ हटा देना है और उसकी जगह ऊपर अपोस्ट्रोफी यानी कि एक छोटा सा कॉमा लगा देना। सिमिलरली वी कैन, इफ द वर्ड इज शुड एंड नॉट, अगर वर्ड है शुड नॉट, बेटा प्लीज पे अटेंशन, जब फुल फॉर्म हम लिखते हैं तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में गैप आता है। डिड नॉट में गैप आएगा, शुड नॉट में गैप आएगा। सो शुड नॉट का जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड को पूरा लिखो, शुड लिख दिया फर्स्ट वर्ड पूरा, और इसके साथ एन फटाफट साथ में ज्वाइन करना, गैप नहीं देना। ओ नहीं लिखना हमने, ओ की जगह हम क्या लिखेंगे, apostrophe and t, yes, अच्छा वो वाला एग्जाम दे भेजे ओ है। very good bete, very good. So it will become shouldn't, did not will become didn't, and should not will become shouldn't. Clear to everybody? Okay, so इसे बोलते हैं हम, ये हो गई फुल फॉर्म, इधर वाली हो गई हमारी फुल फॉर्म और इधर वाली हमारी हो गई शॉर्ट फॉर्म। रेड में जो हमने लिखे हैं दैट इज द फुल फॉर्म एंड ब्लैक में जो लिखा है दैट इज द शॉर्ट फॉर्म और द कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपने करनी है। तो ये बहुत इजी है, आपको सारे वर्ड इजीली हो जाएंगे। एक वर्ड जो डिफरेंट है, प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन, जो वर्ड डिफरेंट है विल नॉट। अगर हमारा वर्ड होगा विल नॉट तो इसमें हम विलंट नहीं लिखते। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है WON देन अपोस्ट्रोफी एंड देन T। विल नॉट विल बिकम वोंट, ठीक है, will not will become won't. Please, I can't see you people to be very attentive. Is it clear? Show me a thumbs up if it's clear to everybody. न्यू मैडम लगी है, आ रहा है। Okay बेटे, all right. तो इस तरह से आपने ये, अब आपको इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, they have given you the शॉर्ट फॉर्म्स, आपको शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है, आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है, बट मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग द फुल फॉर्म्स दोनों वर्ड्स के बीच में गैप आना चाहिए। लाइक इफ यू आर राइटिंग डिडंट का अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो तो इट विल बी डिड देन अ गैप एंड देन नॉट, डिड नॉट, राइट। तो इस तरह से आपने करना है, शुडंट, शुड नॉट, वुडंट, वुड नॉट, कुडंट, कुड नॉट, मसंट, मस्ट नॉट, राइट। ओके बेटा, नाउ क्विकली विल मूव टू पेज नंबर 78। यस, एक चीज आपने फटाफट से लिखेंगे जहां पे where it has been written ना, let's write लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी बेटे, let's write लिखा है यहाँ पे, उसके साथ ब्रैकेट में आप लिखेंगे homophones। I'll explain what are homophones। नेट ऑन करना मेरे फोन का, जल्दी से मेरे फोन का नेट ऑन कर, हॉटस्पॉट। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट साइड स्क्रॉल, हाँ जल्दी बेटा, am I audible?
Oh, I'm really sorry, I was muted बेटे. Okay, so मैं बोल रही थी कि TOO2, टू कौन सा वर्ड है? टू को बोलो TOO2 एंड TWO2 बोलो, वो भी टू बोल रहे हो आप. So ये दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है. जब आप बोलते हो बोलने के साउंड सेम आ रही है, लेकिन उन दोनों के स्पेलिंग भी डिफरेंट है और उनके मीनिंग भी डिफरेंट है. ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है, बोलने में वो सेम है, लेकिन उनकी मीनिंग और उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, उन्हें बोलते हैं हम होमोफोन्स. ओके बेटे. सो नेक्स्ट देखो, ONE1, वन जैसा एक और वर्ड ढूंढेंगे हम, WON1, विन की सेकंड फॉर्म. वेरी गुड धैर्य प्रताप. बट माय क्वेश्चन इज इट क्लियर टू यू? क्या ये क्लियर है आपको होमोफोन्स क्या होते हैं? हैव यू रिटन होमोफोन्स वर्ड? हैव यू रिटन? आई टोल्ड यू कि आप जहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेट्स राइट. Yes, ma'am. वेरी गुड बेटे, वेरी गुड. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. ठीक है, तो आपने एक नई चीज सीखी है, होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनके साउंड सेम होती है, लेकिन उनके मीनिंग और उनके स्पेलिंग्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ओके, आई सपोज आई राइटिंग इन द चैट बॉक्स. सारे देखेंगे चैट बॉक्स में. आपको और एग्जांपल देती हूँ इसके. HAIR हेयर, हेयर बोलते हैं. ओके, अगर मैं बोलती हूँ HERE हेयर, अगर मैं बोलती हूँ HEAR हेयर, सो ये देखो तीन वर्ड्स है. इनको आप जब बोलते हैं ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन आती है, हेयर. ठीक है, लेकिन तीनों के स्पेलिंग्स अलग है, तीनों के मीनिंग्स अलग है. सो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स. क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके बेटा, तो ये एक्सरसाइज करनी है. एंड लास्ट एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो पेज नंबर 79 पे है. पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 2. दैट्स इट. आपने ये सारी एक्सरसाइजेस आज करनी है, राइट?